کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس نعرے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی ہے۔ میاں صاحب کو بھی الیکشن لڑوایا گیا آزاد کشمیر میں اور انہیں حکومت بنا کر دی گئی، کیونکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بائیکاٹ کر دیا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھی بائیکاٹ کیا، 10-15% ووٹ پڑا، کشمیریوں نے بالکل ارریلیونٹ ثابت کیا اپنے آپ کو اس الیکشن میں، پھر جعلی ووٹ چوٹ ڈال کے میاں صاحب کو سیٹیں دلوا دی گئیں۔ اب میاں صاحب نے وہاں پہ جو بندے ان کے منتخب کروائے گئے تھے ان میں سے ایک بندے کو وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کرنا تھا، لیکن وزیر اعظم نے ایک ہارے ہوئے شخص کو، بیرسٹر افتخار گیلانی جو اپنا الیکشن ہار گیا تھا، اس شخص کو منتخب کیا ہے، کیونکہ کوئی 7-8 مہینے پہلے سے ہی نا اس کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ اشارے دیے گئے، بہت سارے لوگ اس کا نام لے بھی رہے تھے، کئی لوگ اسے پہلے ہی مبارکبادیں دے رہے تھے کہ بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب آپ تو ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اور آپ ہی کو بنایا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں پہلے سے یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو وزیر اعظم بنانا، لیکن یہ مسترد ہو گیا تھا۔ پھر میاں صاحب اس کو ٹیکنوکریٹ کی نشست کے اوپر، یعنی مخصوص نشست کے اوپر لے کر آئے، عوام نے اس کو ووٹ نہیں ڈالا، عوام اس کو ممبر اسمبلی بھی نہیں دیکھنا چاہتی، عوام نے اس کو ایم ایل اے کا ووٹ بھی نہیں ڈالا، لیکن میاں نواز شریف نے اس کو مخصوص نشست پر لا کر عوام کی امیدوں کے برعکس اس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کر لیا۔ جناب اس کو اب بنایا جائے گا، آج ووٹنگ ہونی تھی، اب کل ووٹنگ ہو جائے گی 29 کو۔ لیکن انٹرسٹنگ بات آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف جس نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، یعنی جو ووٹر فیصلہ کرے اس کے مطابق پاکستان کو آگے چلاؤ، آج وہی نواز شریف ووٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اسے ووٹ ہی نہیں ڈال رہے، اس کو فارغ کر دیتے ہیں، تو نواز شریف اس کو مخصوص نشست کے اوپر لے کر آتا ہے اور لا کر اس کو مسلط کرتا ہے آزاد کشمیر کے عوام کے اوپر، جیسے میاں نواز شریف کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیا پاکستان کی عوام کے اوپر، اس کی بیٹی اور اس کے بھائی کو سب کو اقتدار بنا کر دیا۔ اب ناظرین، دنیا بھر میں عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھ رہی ہے اور بہت تیزی سے اٹھنا شروع ہو گئی ہے، ہر طرف سے ایک دباؤ آ رہا ہے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، کیونکہ فوج سارا کچھ کرنے کے باوجود عاصم منیر یہ ثابت نہیں کر پایا کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی عدالتی کیسز کی وجہ سے جیل کے اندر بند ہے، یعنی عاصم منیر صاحب یا ان کے ساتھی وہ یہ بیانیہ بنا ہی نہیں پائے، پوری دنیا یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر نے عمران خان کو بند کیا ہوا ہے اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو نشان عبرت بنانے کی ایک جدوجہد شروع کی ہوئی ہے۔ اب وہ اس تاثر سے بڑی کوشش کرنے کے باوجود باہر نہیں نکل پائے، تو پوری دنیا اب آواز اٹھاتی ہے، تو دباؤ پاکستان کی حکومت سے زیادہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آتا ہے۔ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے ایک انٹرویو دیا اور یہ انٹرویو انہوں نے دیا ہے مائیکل ایتھرٹن کو، جو سابق کیپٹن ہے انگلش کرکٹ ٹیم کے، اور یہ اسکائی سپورٹس کے اوپر جب لنچ کا ٹائم ہوا پاکستان اور انگلینڈ کے بیچ میں جو ٹیسٹ میچ چل رہا ہے اس کا جو لنچ کا ٹائم ہے اس میں یہ انٹرویو آن ایئر کیا گیا۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد واقعہ ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ سپورٹس کی شخصیات تک آواز اٹھا رہی ہیں۔ اسکائی سپورٹس ایک بہت بڑا دنیا کا چینل ہے، وہاں پہ جب لنچ ٹائم آتا ہے کرکٹ ٹیم کے میچ کے دوران تو اس وقت وہاں پہ اس انٹرویو کو پلے کرتے ہیں۔ یہاں عمران خان صاحب کے بیٹے نے ایک واقعہ سنایا، انہوں نے کہا جی گن پوائنٹ پہ رابری ہو رہی تھی، وہاں پہ اگر کوئی ایک آدمی مطمئن تھا نا ماضی میں، ہم سارے اس واقعے سے ایک دفعہ گزرے، عمران خان بھی ہمارے ساتھ تھے، تو وہ کہتے ہیں جب گن پوائنٹ پہ رابری ہو رہی تھی تو ایک ہی آدمی تھا جو بالکل اطمینان کے ساتھ موجود تھا اور وہ کسی قسم کی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوا، وہ عمران خان تھا۔ تو ایسے آدمی کو اعصابی طور پہ توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن قید تنہائی لگاتار عمران خان صاحب کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بہت ساری اور باتیں بھی کی، تو آواز تو انٹرنیشنلی عمران خان صاحب کے لیے اٹھ رہی ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ارلی ہیئرنگ کی درخواست دینی چاہیے، تو عظمیٰ خانم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور درخواست دائر کر دی ہے، جس کے مطابق وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو فیصلہ ہوا تھا ان کا علاج کروانے کے حوالے سے جو ان کی درخواست ہے عظمیٰ خانم کی، وہ جلدی سنی جائے، ارلی ہیئرنگ کی جائے درخواست کی، اور اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے دوبارہ رجوع کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو جلدی سنتی ہے یا نہیں سنتی، لیکن عمران خان صاحب کے جو جیل سے پیغامات موصول ہوئے اور جن کی بنیاد کے اوپر ایک بیانیہ بنتا ہے، اب یہ سورسز تو ڈسکلوز نہیں کیے جا سکتے، عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ملاقاتیں بھی بند کر دیتے ہیں۔ ایک بات پہ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ 27 تاریخ سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، یہ انہوں نے اپنی پارٹی کو اور عوام کو کہہ دیا کہ اب 27 سپتمبر کی جو تاریخ ہے اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا، یعنی اب ایک مہینہ پیچھے رہ گیا ہے اور اس ایک مہینے میں کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا، 27 تاریخ کو ضرور احتجاج کرنا ہے۔ حتیٰ کہ عمران خان صاحب نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کہیں یہ مجھے اسپتال لے بھی آئے
तुम्हें कोई बड़ी खबर भी मिले तो तुमने 27 तारीख के एहतजाज से पीछे नहीं हटना, इस कॉल से पीछे नहीं हटना। बड़े पैमाने पे लोगों को निकालो और 27 तारीख को लेकर आओ और एहतजाज करो। अभी तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें होनी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तैयारी, मैं उस बारे में आपको अगर कहूँ तो वो कोई इतनी अच्छी तैयारी मुझे नज़र नहीं आ रही। ये जिसको कहते हैं ना ग्राउंड के ऊपर तैयारियां होना, चीज़ें तैयार करना, इक्विपमेंट तैयार करना, किस तरीके से आपने कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, उसके बारे में मीटिंग्स होती हैं, बार बार बातचीत की जाती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी तैयारी कहाँ गई और बड़े पैमाने पे ये तैयारियां क्यों नहीं कर रहे। नादरीन, आपको याद है एक दरखास्त आई थी 3 कैदियों की इमरान खान साहब के खिलाफ। इमरान खान साहब के खिलाफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्चुअली उन्होंने कार्रवाई तो ऐसी ही डाली है ना। 3 कैदियों की दरखास्त आ जाती है, अडियाला जेल से ही आती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आती है। ये दरखास्त नाजरीन आती है 23 अगस्त को ये केस फाइल होता है, 24 अगस्त को नोटिसेस हो जाते हैं और 26 अगस्त को केस मुकम्मल करके जो है इसका फैसला महफूज कर लिया जाता है। अब आप अंदाजा कीजिए ये हालात है पाकिस्तान में जुडिशरी के। इमरान खान भी अडियाला जेल में रहते हैं, 1-1 साल तक उनकी दरखास्त लगती नहीं, वो अपीलें करते हैं, 1.5 साल तक अपीलें लगती नहीं। कहाँ इमरान खान साबिक वजीर आजम, पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी रहनुमा, उसकी अपील 1.5 साल तक नहीं लगती। जबकि अननोन कैदी हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, वो अपीलें करते हैं 3 कैदी मिलके और वो अपीलें लग जाती हैं 1 दिन के अंदर, अगले दिन नोटिस, 1 दिन छोड़कर केस की समाअत और फिर फैसला महफूज। ये मामला आईनी अदालत में जाएगा क्योंकि वो कैदी कहते हैं जी हमें भी बैरून मुल्क कॉल करने की सहूलत दी जाए और साथ साथ हमें भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करने की सहूलत दी जाए। तो क्यों ना उन कैदियों को पहले उन हालात से गुजारा जाए जिन हालात से इमरान खान साहब को गुजारा गया। क्या वो कैदी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो इमरान खान साहब के साथ किया गया? जो जुल्म और बर्बरियत इमरान खान के साथ हुई उसका तो कोई और एग्जाम्पल नहीं है पाकिस्तान में। बहरहाल ये मामला आईनी अदालत में जाएगा जो मुझे लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट जिस तरह का फैसला देगी ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा और ये मामला अल्टीमेटली चला जाएगा आईनी अदालत के अंदर। और आईनी अदालत आपको पता है कौन कंट्रोल करता है? वो तो पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। तो आईनी अदालत वही करेगी जो पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, उसके अलावा वो और कुछ ना करते हैं, ना कर सकते हैं, ना किसी सीमत वो जाते हैं। नाजरीन, जो कर्नल वाला मामला है जिसने जाके फायरिंग की वहां पे यूनिवर्सिटी में, एक तो देखें फौज के अंदर ये तासर पैदा किया जा रहा है कि अफसरान बड़े बेचैन है, अफसरान को बड़ी तौहीन महसूस हो रही है, कर्नल की यूनिफॉर्म के ऊपर हाथ क्यों डाला गया। तो मेरी तमाम फौजी अफसरान से गुजारिश है कि आप बताएं कि क्या ये गैर जिम्मेदारी नहीं है कि एक कर्नल यूनिफॉर्म पहन के पिस्तौल लेके यूनिवर्सिटी के अंदर घुस गया, उसकी बीवी ने कॉल किया और वो पहुंच गया वहां यूनिवर्सिटी के अंदर और वहां जाके बच्चों को चपेड़े मार रहा है, उन्हें डंडे के साथ मार रहा है। आपको किसने ये हक दिया कि आप सिविलियन मैटर्स के अंदर ऐसे दखल अंदाजी करें? आप ये नहीं कर सकते। वहां पे पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस को कह सकते हैं बच्चों को हटाओ। और कोई एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें कर्नल की बीवी को धक्का मारा गया हो या कर्नल की बीवी पे तशद्दुद किया गया हो। बच्चे सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, नारे लगा रहे थे और तो उन्होंने कुछ नहीं किया। बल्कि जो आप वीडियोज आई हैं उनके मुताबिक कर्नल की बीवी ने पहले बहुत उछल कूद की है वहां पे। वो कभी बैरियर को लात मारती हैं, कभी पुलिस से डंडा छीन के बच्चों पे पिल पड़ती हैं। तो कर्नल की बीवी ने तो बच्चों के साथ बड़ी ज्यादती की है, बच्चों को हरास किया। फिर कर्नल साहब आए, उन्होंने एक कदम और आगे जाके अपने डंडे से बच्चों को मारना शुरू कर दिया। फिर वो पिस्टल निकालते हैं, निकाल के बच्चों के सीने के ऊपर रख देते हैं। अब बच्चे मना कर रहे हैं, यार पिस्तौल अंदर डालो, तुम्हें इज्जत अपनी रास नहीं है। कर्नल बाजी नहीं आता, फिर डंडा मारता है एक और बच्चे को। फिर बच्चे अब क्या करें, वो डिफेंस अपना ना करें। एक कर्नल है, उसके हाथ में पिस्तौल है, वो बच्चों के सीने पे बार बार रख रहा है, वो डंडे के साथ बच्चों को मार रहा है, यूनिफॉर्म पहन कर आया। उसे अपने यूनिफॉर्म का एहतराम ही नहीं है, उसे एहसास ही नहीं है कि उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। उसे एहसास होना चाहिए कि उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। कई दफा मेरा भी दिल किया किसी को थप्पड़ मारने का, किसी को मुक्का मारने का, कई दफा मार भी देता हूं, लेकिन ज्यादातर मैं अपने आप को होल्ड करता हूं कि नहीं यार ये ज्यादती है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, मैं ये हरकत करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अब वहां पे कर्नल की वीडियोस भी बन रही हैं, वो जनाब तलंगों की तरह कभी इधर कभी उधर को फायरिंग कर रहा है। अब ये हरकत जो है एक्चुअली पाकिस्तान की फौज की या वर्दी की बेइज्जती जो है वो बच्चों ने नहीं की। बच्चों ने वही किया जो एक कोई भी आम आदमी करता, अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कर्नल ने और उसकी बीवी ने वहां पे जो उछल कूद की, उसकी वजह से इदारे की बदनामी हुई है, यूनिफॉर्म की बदनामी हुई है। और यूनिफॉर्म की बदनामी होती है हलफ तोड़ने से, यूनिफॉर्म की बदनामी होती है आइन तोड़ने से, यूनिफॉर्म की बदनामी होती है मार्शल लॉ लगाने से। ये बच्चों के हाथ डालने से यूनिफॉर्म की बदनामी नहीं होती, ये कहानियां किसी और को सुनाएं जाके। दूसरा, बच्चों को हरासा किया जा रहा है।
लगातार हरासा किया जा रहा है, यूनिवर्सिटियों भी हरासा किया जा रहा है, और बहुत मुमकिन है कि कुछ बच्चों को यहां से यूनिवर्सिटी से निकालने की भी कोशिश की जाए। अब इस तरह की खबरें चल रही थी, मैं उनकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इसके पीछे पड़ी हुई है इस पूरे मामले के, और डीजी साहब खुद इस पे इन्वॉल्व हुए हैं और वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि जनाब इनको छोड़ना नहीं है, इनको निशाने इबरत बनाना है। अब अगर यूनिवर्सिटी और बच्चों के साथ कुछ भी बुरा होता है तो बच्चों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपका ताल्लुक किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपका ताल्लुक किसी भी कॉलेज से, जब भी कभी आप हक के लिए खड़े होंगे तो आपको यही किताबों में पढ़ाया जाता ना कि हक के साथ खड़े हो, कानून और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करो। आपकी तालीम का कोई फायदा नहीं है अगर वक्त आने पर आप इंसाफ और कानून के लिए खड़े ना हो, तो ना इंसाफी के खिलाफ खड़े ना हो तो कोई फायदा नहीं आपकी तालीम का। अगर इन तालिब इल्मों को, इन उस्तादों को और यूनिवर्सिटी को निशाने इबरत बनाने की कोशिश की जाती है या इनके खिलाफ कोई बदला लिया जाता है या ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में मौजूद तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा को इनके साथ खड़ा होना होगा। आप खड़े हो जाएंगे तो पाकिस्तान में आपकी इज्जत और आपका दबदबा बरकरार रहेगा, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप जेंजी हैं। और अगर आप खड़े नहीं होंगे तो याद रखिएगा, बारी बारी सबकी बारी, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक एक करके सबको मारेगी। आज उनको मारा, कल इनको मारेगी, परसों उनको मारेगी, और ये अपने डंडे के साथ जैसे कर्नल साहब चला रहे थे यूनिवर्सिटी में करने के लिए, जैसे डंडा वहां पे चला रहे थे, ये पूरे मुल्क में ऐसे ही अपना डंडा चलाएंगे और आप सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। बच्चों को सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। नादरीन, जो अस्पताल वाला मामला हुआ, पिम्स हॉस्पिटल वाला, उसमें सारी गलती बज़ाहिर अब पिम्स अस्पताल की निकल रही है। वहां एक खैमा लगाया गया था नए सेक्रेटरी हेल्थ की जानिब से, लेकिन वो खैमे में उनके आने से पहले ही जो दुर्गत बनाई मीडिया ने और सोशल मीडिया ने कि यार ये कोई पागल आदमी है, ये किधर खैमे के अंदर घुस रहा है कि जनाब मैं यहां पे बैठूंगा और इंसाफ करूंगा। भाई जाओ दफ्तर में बैठ के काम करो। हमें काम करने की जरूरत है, हमें उन बंदों की जरूरत है जो काम करें, जो पैसा आवाम दे वो उसी जगह पे लगाएं जहां पे लगना चाहिए। उन पैसों को अपनी जेबों के अंदर ना डालें, उनको अपनी मौज मस्ती के लिए खर्च ना करें। हमें ऐसे अफसरान चाहिए। अब जनाब यहां पे एक पिम्स में राणा इमरान सिकंदर साहब हैं, इनके बारे में दावा किया जा रहा है कि इनको नहीं हटाया जा सकता। जो जिम्मेदार हैं राणा इमरान सिकंदर साहब, इनको नहीं हटाया जा सकता। सेक्रेटरी को हटा दिया, जो पिम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है बराह रास्त, जो वहां पे लगा हुआ है राणा इमरान सिकंदर, उसको नहीं हटा रहे। सेक्रेटरी हेल्थ को हटा दिया जिसके अंडर सारी हेल्थ के मामला हैं, इसको नहीं हटा रहे। इसको इसलिए नहीं हटा रहे कि कुछ लोगों का यह दावा है कि सेक्टर कमांडर का यह बड़ा खास है, जो इस्लामाबाद का ISI का सेक्टर कमांडर है, ये आदमी उसका बड़ा खास दोस्त है, लिहाजा सेक्रेटरी फारिग हो गया, इसको फारिग नहीं किया जा सका। ये है नादरीन हालात। अब ये जो बच्चों की वहां पे हलाकतें हुई हैं पिम्स हॉस्पिटल में, 14 बच्चे वहां पे हलाक हो गए और माँ बाप बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं। यहां पे आसिफ गफूर साहब, आपको याद होगा, एक साबिक DG ISPR हुआ करते थे, आसिफ गफूर। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके बड़े दुख का, रंज का इजहार किया कि मेरे दिल को ये हो गया। वो कुछ भी नहीं हुआ आपके दिल को आसिफ गफूर साहब। क्या हो गया? क्या आप लोगों ने लोगों की माओं के बच्चे जबरी तौर पे लापता नहीं किए? कितनी माएं रोती रही, बिलकती रही आपके दफातर के बाहर आके। क्या आपने बच्चों को जबरी तौर पे, आप बलूचिस्तान में नहीं थे, वहां पे मासूम बच्चों को जबरी तौर पे लापता नहीं किया गया, उन्हें टॉर्चर नहीं किया गया? क्या पाकिस्तान में मासूम बच्चों पे एरियल स्ट्राइक नहीं किए गए? क्या मीर अली और बेरन शाह के बाजारों के अंदर औरतों और बच्चों की लाशें नहीं पड़ी रही? क्या मासूम बच्चों के ऊपर ड्रोन हमले करके उनका कत्लेआम नहीं किया गया? क्या मदरसे के ऊपर बम धमाके नहीं किए गए? कैसी बात आप करते हैं? यहां पे आपने फौरी तौर पे एक ट्वीट दाग दिया कि आपका दिल बड़ा नरम है, लोग इसका भरोसा करें। आपका दिल नरम नहीं है, आपने जबरी तौर पे गुमशुदगियां की हैं, आपने माओं के दिल छन्नी किए हैं, आपने ड्रोन हमलों में मासूम बच्चों को मारा है, आप हर चीज के अंदर बराबर के शरीक रहे हैं। कई मरतबा पुरअमन निहत्ते शहरियों पर आप लोगों ने गोलियां चलाई हैं और उनमें बहुत सारों को शहीद कर दिया है। आप ये ट्वीट करके ये साबित नहीं कर सकते कि आप अवाम के दुख के अंदर शामिल हैं। अगर आप अवाम के दुख के अंदर शामिल होते तो अरशद शरीफ की शहादत पे बोलते। अगर आप अवाम के दुख के अंदर शामिल होते तो जबरी गुमशुदगियों पे बोलते। जब हम सबको जबरी तौर पे लापता किया जा रहा था, आप कभी भी जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हुए। और लोग ये कहते हैं ना कि जर्नैलों की मजबूरी है जी नौकरी। हम भी तो नौकरियां छोड़ के बैठे हुए हैं, बेशुमार और लोग नौकरियां छोड़ के बैठे हुए हैं। और भाई तुम लोग तो अमीर लोग हो, खानदानी लोग हो, बहुत तुम्हारे पास पुराने पैसे खानदानी चले आ रहे हैं। हम तो इतने अमीर लोग नहीं थे, हमने तो अपना सारा कुछ दाव लगाया पाकिस्तान के लिए। हमारी तो लड़ने की ट्रेनिंग भी नहीं थी, हम लड़ पड़े। और तुम्हारी तो तरबियत ही लड़ने की, और तुम एक दिन भी नहीं खड़े हुए। और अब जनाब रिटायरमेंट के बाद ये कहानी सुना रहे जनाब मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ। नहीं, आपका दिल दुखी नहीं हुआ, आपका दिल बहुत सख्त है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता इससे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए
کیونکہ آپ کا سٹیک نہیں ہے پاکستان میں. ہوتا تو پاکستانیوں کی تکلیف کو آپ بہت پہلے محسوس کرتے اور خاص طور پہ اس